I'm keeping this class for maximum power transfer theorem, but in order to understand maximum power transfer theorem, we should first understand the concept of sinusoidal steady state. Steady state. You can cut one steady, and the concept of what we call as phasors. Okay, phasors. Consider that you have a time varying signal. You have a time varying signal in which the voltage is a function of time. So our voltage is a function of time, and we can write it as Vm sine omega t, something like this, where Vm is the maximum value our voltage can take. Omega here represents that the variation in the voltage is cyclic. It is something which is changing with time and it's repeating itself. Okay, so this is a sinusoidal function. Okay, sinusoidal function. A sinusoidal function. And because you know what is the maximum and the minimum value of a sinusoid, upper bound or lower bound क्या होते हैं sin function Plus minus 1. So it can minimum be a -1 and can maximum be a +1. And then +1 -1 multiply करेंगे Vm से, तो at max our Vt can be plus Vm and at minimum our Vt can be minus Vm. तो बाहर नहीं जाएगी, बाउंडेड है. अगर बाउंडेड है तो हम उसे स्टेडी बोल सकते हैं. तो इन अ वे why I'm calling it as steady state, because I know at any point of time there is an upper bound and there is a lower bound for my sinusoidal function. Fine. Although it is time varying, but it is having some upper and lower bounds. It is not like this. With time, it is not going to shoot to infinity. It's not like this. It is stable. It is steady. At any point of time, you know, अगर आपको frequency और बाकी चीजें पता है तो आप बता सकते हैं कि at this point of time this is going to be the value of my function. That's why steady. खैर, so this type of function where we have Vt is equals to Vm sine omega t can also be written in a different representation. We call this as phasor representation. You just write it as Vm angle 0. Vm angle 0. Fine. और ये Vm angle 0 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो यहां से आया. आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग समथिंग एज r angle theta, then I can write it as r cos theta plus ir sin theta, and this comes from r e to the power I theta से. जहां पे आप इसे एक्सपेंड करेंगे यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी, तो यू कैन राइट r cos theta plus I sin theta, and when you will multiply it with this r you will get this term back. तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है? इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है that you just have r and yet say there is a theta. Fine, you have r and just a theta. This is how you represent complex numbers. Or there is a way of representing sinusoidal steady state as sinusoidal varying functions, exponentially varying function which are cyclic, e to the power I theta type of functions. एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसे संभाल के रखिएगा, वी वुड नीड दिस. दूसरी चीज है कि जब आपका जो सिग्नल है वो साइक्लिक वेरिएशंस दिखाता है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड, यानी एक टाइम साइकिल का एवरेज क्या हो जाता है? एक हाफ में प्लस और अगले हाफ में माइनस, तो एवरेज 0 हो जाता है. तो इस तरीके से तो आप एवरेज पावर या एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एनीवेज, कुछ पावर तो डिसिपेट हो ही रही है. अगर एसी सिग्नल आ रहा है, आपका डिवाइस एसी है, तब भी पावर तो डिसिपेट होती ही है. ऐसा तो नहीं है कि आधे हाफ में प्लस आधे हाफ में माइनस तो पावर डिसिपेट हो गई 0. तो एक स्पेशल टर्म होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितनी
पावर इक्विवेलेंट टू अ डीसी सर्किट ये एसी जो कंपोनेंट है वो खर्च कर देगा, तो उसे आप बोलते हैं, अगर आपको आपका 4th सेमेस्टर कोर्स याद है, वी कॉल इट एज आरएमएस वैल्यूज। तो कोई भी एसी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए बल्ब है एसी पर चलता है, फैन है एसी पर चलता है, उसमें उसकी पावर रेटिंग्स लिखी है, तो जो पावर रेटिंग्स लिखी होती हैं वो एज पर अकॉर्डिंग टू द आरएमएस कन्वेंशंस लिखी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका फंक्शन मान लीजिए ऐसे था, इट वाज समथिंग लाइक v is equals to vm sin omega t, ओके, vm sin omega t। तो जब आप पावर निकालने की कोशिश करेंगे या पावर निकालेंगे तो यू रिमेंबर दैट इस vm से काम नहीं चलेगा, हमें इसकी आरएमएस वैल्यू यानी कि vm अपॉन रूट 2 ध्यान में रखनी होगी। दैट्स हाउ यू डू इट। सो दिस इज द vrms। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई आई होता और उसकी वैल्यू होती आई एम साइन ओमेगा टी, तो आई आर एम एस भी यही हो जाता, आई एम अपॉन रूट 2। फाइन, वी एम अपॉन रूट 2, आई एम अपॉन रूट 2। अब मान लीजिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। करंट में और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब ये साइन ओमेगा टी ना होकर साइन ओमेगा टी प्लस 60 हो गया लेट अस से, ठीक, ये साइन ओमेगा टी ना होकर साइन ओमेगा टी प्लस 60 हो गया, तो जो पावर वेरिएशंस होते हैं वो होगा, आप जानते हैं व्हाट इज पावर गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, vi, perfect। so you write it as p is equals to vi, but in terms of AC current or AC variations you always write it as p is equals to vrms into irms, okay, vrms into irms and cos of the phase difference, या phi बोल सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में देखें, दिस वाज आवर v, दिस वाज आवर i, तो यहां से आरएमएस वैल्यू ऑफ v और आरएमएस वैल्यू ऑफ i आपने निकाल ली, तो p इज इक्वल्स टू वी आरएमएस कितना आ रहा है, vm अपॉन रूट 2, आई आरएमएस कितना आ रहा है, आई एम अपॉन रूट 2, एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में 60 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है, तो cos ऑफ 60। दैट्स हाउ यू डिटरमाइन पावर फॉर एसी कंपोनेंट्स जो एसी पर रन करता है। आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, और वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस हो सकता है, उस फेज डिफरेंस का कोसाइन, ठीक है। सो ये एक नोशन है जो आपको याद रखना है आगे चीजें याद करने के लिए। आई विल पॉज दिस फॉर अ व्हाइल बिकॉज so that's how we determine what is going to be the power dissipation for the components which run on AC circuits। Fine। So जैसे मान लीजिए आपके पास करंट वैल्यू दी हुई है ये, which is I is equals to Im sin omega t, okay, and suppose that your I is flowing through an inductance, the small I is flowing through an inductance, then you know that the voltage across the inductance would be L di by dt, correct? L di by dt means you have to take derivative of this particular equation above। लीजिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, L times what is the derivative of this, Im sin omega t का डेरिवेटिव क्या होता है, ओमेगा cos omega t, ओमेगा cos omega t। now you see that आप यहां से ही देख सकते हैं, एक ये साइन ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी है, तो अपने आप ही कितने डिग्रीज का फेज डिफरेंस आ गया, साइन और कॉस में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 90। सो अपने आप ही 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस आ गया, ओके, एंड वी कैन से दैट दिस v इज 90 डिग्री अहेड ऑफ दिस i, या कह सकते हैं कि i जो है वो 90 डिग्री लैग करेगा इस कॉस यानी वोल्टेज से। और अगर आपको पावर निकालने को दे दी जाए, व्हाट इज गोइंग टू बी द पावर, तो स्टिल आप वही सेम चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज v बाय या vm बाय रूट 2 जो होगा वो होगा, इसमें मैक्सिमम निकालें, इट इज im ओमेगा इनटू l अपॉन रूट 2, दिस इज योर vrms।
Im omega into L upon root 2. This is your VRMS, and then IRMS भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं. That's how you would proceed. Similar can be the case for the capacitive circuits in which you use Q is equals to CV. और अगर आपका जो करंट आप बोल रहे हैं that is of the form C dV by dt, और V आप बोल रहे हैं V is like Vm e to the power I omega t. Okay, if you say like this, ये भी एक तरीका होता है साइनसॉइड्स को रिप्रेजेंट करने का, Vm e to the power I omega t. तो यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव लें इस चीज का, इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो देखें क्या हो जाएगा, व्हाट इट वुड बी V, और आई कैन से I इज इक्वल्स टू C dV by dt. क्या हो जाएगा, Vm लिया, फिर यहाँ I ओमेगा टर्म आ जाएगा, और फिर वही का वही e to the power I omega t itself. तो ये जो J ओमेगा वाला टर्म आ रहा है वो बता रहा है कि that let's say this is our real axis, this is our imaginary axis. So if something is on real axis, we say that the phase difference is 0, and if the something is on imaginary axis, we say that the phase difference is 90, and if something is in between, then the phase difference can accordingly be decided. Fine. Okay, तो ये चीजें आपको आप ध्यान में रखनी है, that there can be a phase difference between the voltage and the current flowing through same element. The voltage across the same element and the current flowing through the same element can have a phase difference now. ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं which you should remember. Now let us take a very I should say interesting example in which what you have to do is you have to determine all currents and draw the phasor diagram. अब ये phasor diagram क्या होता है ये अभी सीखेंगे. phasor diagram for the steady state. अब steady state का मतलब है तब जब हमने माना कि सब कुछ शांत हो चुका है, t इक्वल्स इन्फिनिटी पहुंच जाए तब. तो स्टेडी स्टेट का एक माने ये भी होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंस. ट्रांजिएंस मतलब जब आपने जस्ट स्विचिंग की, तार वार लगा के स्विच ऑन ऑफ करके देखा. एक होता है स्टेडी स्टेट, ऑन करके उसे काफी देर के लिए छोड़ दिया, इतने देर के लिए कि अब उस स्विच को ऑन या ऑफ करने का इफेक्ट जा चुका है. तो दैट इज स्टेडी स्टेट. तो जब हम बोलते हैं साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट, तो इसका मतलब है कि साइनसॉइड पे अब ऑन ऑफ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. इट इज देयर, साइनसॉइडल इज देयर. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर वन मोर टाइम. ओके, सो बैक देन and the circuit is like this. You have two branches. One is having a resistance and an inductance. Another is having a resistance and a capacitance. Okay. This is your circuit. This is of 10 ohm. This is of let's say 20 ohms. और ये जो है वो 0.1 हेनरीज का है, ये 50 माइक्रोफैरेड्स का है. डन. यहां जो आपने इनपुट दिया है इट इज अ साइनसॉइडल स्टेडी इनपुट जिसकी की वैल्यू है 230 वोल्ट्स. ओके, इट इज Vm, इट इज नॉट VRMS. 230 वोल्ट्स विथ 50 साइकिल्स पर सेकेंड. तो ये एक टाइम डिपेंडेंट साइक्लिक पावर सप्लाई है जिसमें यू हैव फ्रीक्वेंसी गिवन एज 50 हर्ट्ज. ओके, I can write like this. अब आपको करना ये है कि you have current over here, you have current over here. दो ब्रांचेस में करंट बट रहा है. सबसे पहले तो इन दो ब्रांचेस का करंट पता करना है क्या होगा, और फिर उसके बाद आपको फेजर्स बनाने हैं, और फेजर्स के लिए हमें सारे करंट और वोल्टेजेस पता होने चाहिए. ठीक है. तो एक छोटी सी चीज ये याद रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ यू हैव Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज जस्ट Vm एंगल थीटा. दिस इज कॉल्ड एज अ फेजर रिप्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फेजर रिप्रेजेंटेशन. व्हेन Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा दिया है, यू कैन राइट इट एज Vm एंगल थीटा. ओके, सो एक और चीज याद रखें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है it is having an important role to play. जैसे
आपको केवल वीएम और थीटा दे दिया है, आपको केवल वीएम और थीटा दे दिया है, तब आप ये नहीं बता सकते कि इट इज फ्रॉम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यों? इंफॉर्मेशन अधूरी है ना, फेज डिफरेंस पता है और मैक्सिमम वैल्यू पता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो बताई ही नहीं गई। तो केवल वीएम और थीटा देने पर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते वीएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, लेकिन जब वीएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा दिया होगा तब आप लिख सकते हैं वीएम एंगल थीटा, और साथ में आप ये मेंशन कर देंगे कि दिस थिंग वैरीज विथ 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ये वैल्यू दी है फेजर में वीएम एंगल थीटा और साथ में दे दिया है दैट इट वैरीज विथ 50 साइकिल्स पर सेकंड, तब आप बना सकते हैं दैट इट इज वीएम साइन 2 पाई, ये मान लो अगर एफ है तो ये 2 पाई एफ हो जाएगा ओमेगा इनटू टी प्लस थीटा डिग्रीज। तो केवल अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज और फेज डिफरेंस दे दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे वीएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। ओमेगा तो बताया ही नहीं, तो you remember this small concept. For given Vm sin omega t plus theta, you can write Vm phi या Vm theta, Vm angle theta, लेकिन केवल इससे ये नहीं बता सकते, आपको साइकिल्स मेंशन करनी पड़ती है। बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ 50 साइकिल्स पर सेकंड दिया है, तो ये f है या ओमेगा है, बताएं। F. इट इज f। तो अगर आपको ओमेगा पता करना है तो व्हाट इज ओमेगा, बताएं व्हाट इज ओमेगा। 2 pi f, so it would be 2 pi into 50 cycles per second, it would be 100 pi cycles per second या 100 radians per second, you know that। खैर, और यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए that the angle theta is 0, तो खुद सोर्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सोर्स इज हैविंग 0 फेज डिफरेंस, तो हम इस सोर्स को दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, इट इज समथिंग लाइक 230 sin 100 pi t, that's it। तो 100 ओमेगा टी इज 100 पाई टी प्लस 0 डिग्रीज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज गिवन। और ये वीएम दिया है, इट्स नॉट वीएम वीआरएमएस नहीं, वीएम दिया है, ये मान के चलते हैं। डन। और अगर ये वी आरएमएस दिया होता तो वीएम करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना होता? √2 से मल्टीप्लाई करना होता। तो अभी फिलहाल आप ये मान लीजिए दैट दिस 230 इज नॉट वीआरएमएस बट वीएम ओनली। अगर वीआरएमएस दिया होता तो ये चीज याद रखें कि √2 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। So now we have a few things with us and it's fine. Now we can proceed further. अब क्या है, अगर आप ये मान के चलें कि जो नोटेशन है वो e to the power i थीटा वाला है, तो इस ब्रांच का जो नेट इंपीडेंस है, आई एम कॉलिंग दिस एज Z1 लेट्स से, इस ब्रांच का जो नेट इंपीडेंस है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस J ओमेगा L। एंड यू नो ये J ओमेगा L कहाँ से आया, SL से, या आप जब LdI/dt करके लगाया होगा तब मिल जाएगा आपको J ओमेगा L। ओके, तो R1 कितना दिया है हमारे पास, व्हाट इज R1? 10 ohms plus J, what is the value of omega we just calculated? 100 pi. 100 pi multiplied by what is L? 0.1। okay, तो आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बिकम 10 प्लस 3.14 होता है ना, तो ये हो जाएगा 31.4। पाई इज 3.14 इंटू 100 और इंटू 0.1 किया तो 31.4 J हो जाएगा। तो ये आपका Z1 हो गया। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस, रिमेंबर। इस L के होने की वजह से जो इंपीडेंस है इस पूरी ब्रांच का, इट इज बिकमिंग अ कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस। गॉट इट? नाउ कम टू Z2। तो Z2 के लिए कैसे लिखेंगे? इट इज R1 प्लस, नाउ इट्स सेटरिंग, आपकी पास्ट नॉलेज पे डिपेंड करता है आप बता पाएंगे या नहीं। व्हाट, हाउ टू राइट इट? जो कैपेसिटेंस होता है उसे कैसे लिखेंगे? impedance J omega by 1 C. upon J by C. it is not 1 upon CS. 1 upon ls था ना, तो we can write it as 1 upon J omega C, not J omega upon C but 1 upon J omega C। okay, so this becomes अब ये R2 है, सॉरी किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो प्लीज।
So this is R2. This noise is annoying. Anyways, let me just hold it. Please check whose mic is on. Assumptions. फाइन. तो अब ये बताइए कितना हो जाएगा. R2 कितना है सर्किट में? 2 और 20? It is. This is R2, right? This is 20 ohms. This was 10 ohms. This was 20 ohms. 20 ohms plus 1 upon J omega. Omega is 100 pi. C कितना है? 50 microfarads means 10 to the power minus 6 farads. तो ये कितना हो जाएगा? It would become 20 plus 10 to the power 6 upon J 5000 pi. This is 50 into 100, 5000 pi. और कैलकुलेट करें what it would be? Tell me. तो J को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इसे रैशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस सम 63.6 इंटू J. आप एक बार चेक कर लीजिए, पाई की वैल्यू से डिवाइड दे दिया उसे. It would be like 10 lakh divided by 15,000 something. Okay. Have you got it? Great. Now, remember last time आपको complex number से deal करना सिखाया था using calculator. I hope you remember that. So those who attended the live class last time in which we did not made any recordings, अब हमारे पास Z1 भी है, Z2 भी है. And what is the voltage across both branches? It is fixed, 230 angle 0. So the voltage is fixed, 230 angle 0. इस 230 एंगल 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो करंट पता चल जाएगा इन ब्रांच 1, और 230 एंगल 0 को इस Z2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा योर करंट इन ब्रांच 2. Okay, so let us do that. First I would like to find out what is I1, and that would be 230 angle 0 divided by, क्या कोई इसे एंगल्स में कन्वर्ट करके बताएगा मुझे what the values would be? So you need a calculator for that. And it is 10 plus 3.14J. So we have 10 plus 31.4, 31.4 I. ये हो गया, and I have to convert my answer into R theta. बताएं, I have got my answer. आप बताएं, what's your answer? $32.95 angle 72.3. Perfect. तो आपको इस चीज को I1 में डिवाइड दे देना है, तो it would be 32.95 angle 72.3. तो ये जो भी आंसर आया इसको मैं 230 divided by bracket 32.95. I am doing calculations on my calculator, and then angle 72.3 किया. Sorry, it is to be discussed like this. So we have 230 divided by 32.95. एंगल कैसे डिसाइड करते हैं? ये जो माइनस वाला साइन है इस जगह, ये ए बी सी के नीचे एंगल 72.3. मेक श्योर आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्रीज में है और रेडियंस में नहीं है. सो वी हैव गॉट द आंसर एज दिस. इट इज 2.12 माइनस 6.64 J. और अगर आप इसे फेजर्स में लिखेंगे तो इस आंसर को अगर मैं आर थीटा में कन्वर्ट करूं, इट वुड बी 6.98 एंगल माइनस 72.3 डिग्रीज. चेक कर लीजिए. ओके, इट इज 6.98 एंगल माइनस 72.3 डिग्रीज. ऐसे ही आप अगर I2 के लिए करें, व्हाट वुड बी योर I2? इट वुड बी 230 एंगल 0 डिवाइडेड बाय, अब ये निकालें क्या हो जाएगा, ये है हमारा 20 माइनस 63.6 I. इसको आप कन्वर्ट करें R थीटा में
तनु क्या वैल्यू आ रही है? नाइन नाइन वन 991. Okay, so just after the class, give me a photograph of your calculator. We should troubleshoot it. बताइए जिसका आया है आंसर. इज इट एंगल -72.54 डिग्रीज? ओके, मेंशन डिग्रीज ऑल्सो, ये रेडियन नहीं है. अब इसे आपको यहाँ डिवाइड दे रहे हैं तो 66.67 एंगल -72.54 -72.54 से डिवाइड दे रहे हैं. नाउ यू सी क्या आंसर आ रहा है. अब 230 डिवाइडेड बाय आंसर कर दिया मैंने, तो और इस आंसर को कन्वर्ट कर लेते हैं आर थीटा में, तो इट इज कमिंग आउट टू बी लाइक 3.44 एंगल 72.5 डिग्रीज. एक बार चेक कीजिए, इट शुड बी दैट. हाँ, have you done it? Good. Now you see that we will draw phasor diagram. अब ये phasor diagram क्या चीज होती है उसे समझते हैं. सबसे पहले बना लीजिए आपकी सोर्स which was without any phase difference. तो ये रहा साहब हमारा 230 एंगल 0 and this is our V source. फाइन. अब इस V सोर्स से आपने कैलकुलेट किया I1. Okay, you calculated I1. I1 की वैल्यू कितनी है? How much is it? 6.98 एंगल -72.3. तो अब इसमें पहले आप इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए 72.3 डिग्री नीचे चलें और एक लाइन बनाएं जिसकी की लेंथ होगी केवल 6.98 और ये जो एंगल है, आप क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो ये एंगल है माइनस, या तो आप निशान लगा दें तो प्लस लिखें 72.5. अगर आप निशान नहीं लगाना चाहते, ये एरो नहीं लगाना चाहते, तो आप नेगेटिव साइन लिख दीजिए. इससे पता चल जाएगा कि वेदर दिस वैल्यू ऑफ करंट विच वाज I1 इज लैगिंग और लीडिंग. तो ये आ गया आपका I1 की वैल्यू. और I2 निकाले तो इट इज 3.44 72.5. तो ये इसका आधा. और वैल्यू अगर देखिए मैंने यहां पे अगर निशान नहीं लगाया, मतलब एरो नहीं लगाया, तो आई वुड राइट प्लस 72.3. और ये वैल्यू कितनी है इसका? इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज ओनली 3.44 और ये इस दिशा में है ऐसे. तो आप देखिए कि जो I2 है इट इज लीडिंग योर सोर्स, तो फेज डिफरेंस ज्यादा है. अब वोल्टेज पता करते हैं. I इज सेम इन बोथ ब्रांचेस. I1 इन दोनों में फ्लो हो रहा है, I2 इन दोनों में फ्लो हो रहा है. करेक्ट? डू यू एग्री? अब क्या करते हैं हम निकालते हैं पहले VR1 क्या होगा. व्हाट इज VR1? तो VR1 की वैल्यू आप जानते हैं, यू कैन सिंपली अप्लाई I1 मल्टीप्लाई बाय 10. तो बताएं VR1 कितना हो जाएगा? सो योर VR1 is equals to R1 multiplied by R1, R1 multiplied by I1. तो it is equals to 10 ohms multiplied by अभी जो वैल्यू थी आपकी 6.98 एंगल -72.5. तो ये कितना हो गया? टेल मी. भाई एंगल तो चेंज होने वाला नहीं है, वैल्यू बदल जाएगी. वैल्यू कितनी है बताएं? हाँ, तो इसकी 10 गुनी. तो ये स्केल मत कीजिएगा प्लीज, लेकिन ये इसकी 10 गुनी है. इट्स नॉट टू स्केल. ये यहां पे मैं लिख देता हूं दैट दिस इज 69.8 और एंगल अभी भी वही का वही है, सेम. एंड दिस इज माय VR1. Do you see that for resistances the voltage and current are in phase? For pure real resistances the voltage and current are in phase. एक ही दिशा में, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है इस वोल्टेज और इस करंट में. ऐसे ही आप VR2 निकालें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR2? R2 into I2. What that will be? 20 into what was the value? 3.44 angle 72.3. तो ये कितना हो जाएगा बताएं?
तो आपने 20 का मल्टीप्लाई किया 3.44 में, ये हो जाएगा 68.8। तो ये ऐसे स्ट्रेट गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज 68.8 और एंगल वही का वही सेम। ओके, एंड दिस इज व्हाट, ये मैं लिख सकता हूँ इट इज जस्ट सेम एंगल 72.3। मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इस लाइन पे क्यों लिखूं मैं एंगल यहाँ जब लिखा हुआ है। यू सी, अब V2I2 भी, या V2 नहीं, VR2I2 भी सेम फेज में, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। अब आइए आप VL में, व्हाट इज VL? तो VL क्या होगा, इसका आपने इंपीडेंस निकाला था, व्हाट वाज दैट, यू नो दैट, J 31.4 ohms, L का, ये देखो J 31.4, तो ये L वाला पोर्शन था। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, I1 का, और I1 क्या था, I1 यहां से लिख लीजिए, इट इज 2.14 माइनस 6.64 J, 2.14 माइनस 6.64 J। अब दोनों का गुणा भाग कीजिए, फाइनल आंसर बताएं VL क्या होगा। तो ये करके देखते हैं। वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वन इज कॉम्प्लेक्स, अदर इज प्योरली इमेजिनरी। चलिए करके देखते हैं। तो वी हैव वन नंबर विच इज 2.14 माइनस 6.64 I या J, ठीक है, आई हैव रिटन इट। मल्टीप्लाई करना है इसको 31.4 I से, तो आंसर आ गया है मेरे पास, बट मैं इस आंसर को कन्वर्ट कर लेता हूं आर थीटा में। आई गॉट इट एज 209.05 एंगल 17.86, 209.05 angle 17.86। लिया, हैव यू रिटन VL? ओके, अब ये देखिए कि जो VL है इट इज 17.86 डिग्रीज अहेड, तो 17.86 डिग्रीज करीब यहाँ आएंगी, और वैल्यू तो इसकी बहुत ही ज्यादा है, मैं इसमें बीच में किंक लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये करीब 219.05 है, और ये एंगल इज 17.86। अब I1 यहाँ है और VL1 यहाँ है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना 17.86 प्लस 72.5 समथिंग, तो इट वुड बी नियरली 90 डिग्रीज। एक्चुअली हमने कुछ ट्रंकेट कर दिया होगा, बट इट वुड बी 90 डिग्रीज। यहां से यहां तक का एंगल निकालेंगे टोटल, इट वुड बी 90 डिग्रीज। इसीलिए कहते हैं कि जब इंडक्टेंस लें आप, तो इंडक्टेंस के वोल्टेज और करंट में जो करंट है वो 90 डिग्रीज पीछे रह जाता है, और जो वोल्टेज है वो 90 डिग्रीज आगे आ जाता है। यही आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था इस कॉन्सेप्ट से, जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे है, जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे। दिस इज फॉर इंडक्टेंस, सेम विल बी फॉर कैपेसिटेंस, आप करके देख सकते हैं। और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको विद एरोज एंड एंगल्स, वी कॉल दिस डायग्राम एज फेजर। इस डायग्राम को देख के आपको ये तो पता चल जाता है कि मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस क्या है। जो चीज नहीं पता चलती है वो है ये, क्या पता नहीं चलता है इस डायग्राम को देखकर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका है ग्राफिकली एनालाइज करने का, कि आपके जो सर्किट है उसमें वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस है या फेज रिलेशनशिप्स है, ठीक है। नाउ इफ यू हैव ग्रैब एंड ग्रेस्प ये जो वाला टॉपिक जो है कि कैपेसिटेंस का कैसे इफेक्ट होता है और इंडक्टेंसेस का कैसे इफेक्ट होता है, देन वी कैन जंप ऑन टू द थ्योरम व्हिच वी लेफ्ट इन आवर यूनिट 1 व्हिच इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस सवाल में और कुछ पूछना तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो लगा कि लाइव क्लास में भी समझ नहीं आई, रिकॉर्डिंग थी तो बात ही छोड़िए। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट यू वांट टू आस्क मी और यू वांट मी टू रिपीट? सेम आप इसमें जो हमने चीज छोड़ी है वो VC है। नाउ VC वुड बी, आप निकाल सकते हैं माइनस ऑफ J63.6 को I2 से मल्टीप्लाई कर दें और जो भी वैल्यू है उसे प्लॉट कर दें।
you will get the answers. Anyways, so एक और बार पूछ रहा हूँ, कोई डाउट और क्वेरी तो नहीं है? No, clockwise. Yes, exactly. Because your clock moves like this. Because your clock moves like this, so anti-clockwise represent negative, and your clockwise represent negative and anti-clockwise represent positive. You're right. You're right. Okay. In case I made a mistake in delivering it, जैसे मैंने पहले शायद उसे anti-clockwise बोल दिया, you just take it in account. There can be some mistakes. But अगर आप phaser से lower quadrant में चलेंगे तो negative और upper quadrant में चलेंगे तो positive. Okay. Now write down the heading, maximum power transfer theorem. I would just throw the concept as it is, and we will take it using some general examples. Okay. So now we will discuss maximum power transfer theorem. Remember that this particular thing is directly related to the concept of resonance. Why? ये हम पढ़ेंगे जब हम एक्चुअली अपनी तीसरी यूनिट जो है, जहां उस तीसरी यूनिट को छोड़कर इस चीज को करने आ गए हैं, वापस जाएंगे. तो देयर इज अ bit of digression कि हमने तीसरी यूनिट से पहले फर्स्ट यूनिट में आए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स एंड टाइम वेरिंग सर्किट्स. अब फिर दोबारा से हम तीसरी यूनिट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और रेजोनेंस लिंक्ड है आपस में. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है क्या ये समझते हैं. सपोज देयर इज अ सर्किट in which you have a source ES, time varying source, और इस सोर्स के साथ ही एक इंटरनल इंपीडेंस है, वी कॉल इट एज अ सोर्स इंपीडेंस ZS. ठीक है, तो ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप. ये एक थेवेनिन इक्विवेलेंट है बाजार से खरीदी हुई बैटरी का, जो टाइम डिपेंडेंट सर्किट की है या टाइम डिपेंडेंट है. आपने क्या किया, इस सोर्स पर लगाया एक लोड, वी कॉल दैट एज ZL. ओके, इस सोर्स पर लगाया है आपने लोड. So for what value of load, and this load can be varying, for what value of load maximum power will be transferred to the load in this configuration. And remember that now Z is not just pure resistance. Z can have inductance, capacitance, a complex network of inductance, capacitance, a complex arrangement of resistance, inductance, capacitance. So ये जो ZL है, L for load over here, but this can have R, L and C. R for resistance, L for inductance, C for capacitance. ये सब कुछ हो सकता है इसके अंदर. फाइन. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ZL है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे. तो आप सर्किट कुछ इस तरीके से बना लें दैट यू हैव ES, यू हैव ZS. इस ZS को हम खोलेंगे नहीं, वी वोंट ओपन इट, बट इन ZL देयर आर टू थिंग्स. एक तो प्योर रेजिस्टेंस है R, और दूसरा है रिएक्टेंस. तो एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है रिएक्टेंस. रिएक्टेंस इज द कंट्रीब्यूशन इन द इंपीडेंस बिकॉज ऑफ ईदर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस. तो रिएक्टेंस इज, लिख सकते हैं आप, इंपीडेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस और बोथ. ओके, सो जब आप लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस का इंपीडेंस क्या होगा या कैपेसिटेंस का इंपीडेंस क्या होगा, यू ऑलवेज रिप्रेजेंट इट एज JXL और JXC. JXL और JXC. यहां पे जब XC लिखते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ आता है. तो अगर आपका जो
रिएक्टेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, यू विल राइट इट एज JXL. और अगर जो रिएक्टेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस, यू विल राइट इट एज -JXC. और अगर ये रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, केवल हमें ये पता था कि भाई जो कंट्रीब्यूशन Z में इंडक्टेंस की वजह से होता है वो कितना होता है, यू नो दैट इट इज JωL. और जो Z में कंट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस की वजह से होता है वो कितना होता है, ओके, सो आई कैन राइट इट एज -J/ωc ऑल्सो. तो अब यही चीज मैं बोल रहा हूं, इट इज Z इज इक्वल्स टू JXL, आई एम कॉलिंग दिस इज -JXC. तो इसका मतलब XL क्या हुआ, XL क्या किसके बराबर हुआ, ओमेगा L के. और XC किसके बराबर हुआ बताएं, 1/ωc. ओके, नाउ यू रिमेंबर दैट ये जो XL और XC हैं इन्हें हम रिएक्टेंस बोलते हैं. रिएक्टेंस, रिएक्ट व्हेन देयर इज ट्रांजिएंस, दैट्स व्हाई रिएक्टेंस. अब यहां देखें, रिएक्टेंस में और इंपीडेंस में रिलेशन ये है दैट इट वुड कम विद अ J साइन. केवल रिएक्टेंस लिख के काम नहीं चलेगा जब तक आप उसे J से मल्टीप्लाई नहीं करते. ये J इस बात का गवाह है कि आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया. e⁻j⍵t था तो आपने डेरिवेटिव ले लिया तो आगे J आ गया. यहां पे भी ऐसे ही है, ये J इसी चीज का गवाह है. इधर वोल्टेज को करंट में चेंज करते वक्त J आता है, इधर L/di/dt है तो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करते वक्त J आता है. मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं. दिस इज बिकॉज वी हैव V इज इक्वल्स टू L/di/dt, तो डेरिवेटिव ऑफ करंट की वजह से J आ जाता है. और यहाँ यू हैव I इज इक्वल्स टू C/dV/dt, तो डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज की वजह से ये I यहाँ पे आ जाता है. एंड यू नो दैट ये जो V है इट इज V sin ओमेगा या VE⁻I⍵t वाला टर्म. और ये जो I है ये भी एक साइनसॉइडली वेरिंग I इज इक्वल्स टू I0 sin ωt वाला टर्म, ऐसे है. ठीक, तो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस क्लियर. Reactance is the contribution in the impedance because of either capacitance or inductance or both. The reactance can be of two type, capacitive reactance और inductive reactance. और यहाँ इनकी representation और इनका meaning और definition आपको बता दिया है. Now you get it? What is reactance? Okay. So now let me write reactance as just X. It can be capacitive, it can be inductive. Accordingly, signs will change. तो यहाँ जो ZS था, इस ZS को मैं लिख सकता हूं RS प्लस JX ऑफ S, यानी सोर्स का रिएक्टेंस प्लस सोर्स का रियल इंपीडेंस. और ऐसा ही मैं यहां लिख सकता हूं RL लोड का रियल इंपीडेंस प्लस JXL. अब यहां ये छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप कहेंगे सर ये L तो कैपेसिटिव और वो इंडक्टिव वाला हो गया. नहीं, दिस इज लोड रिएक्टेंस. Okay, reactance of load, it can have the contribution because of both capacitance and inductance. ठीक, तो अब फाइनली हम यहां पहुंचे that you have an ES, you have a load impedance, you have a source impedance. The load impedance is RL plus JXS, sorry, RS plus JXS, and your load impedance is RL plus JXL. ठीक है, यहां तक समझ आई चीज. Got it. Now, because both of these are connected in series, you know that there is only one current that would flow. All the same current will flow either through the source or through the source impedance or through the load impedance. Same current will flow. Correct? तो अभी मुझे आप ये लिखने दीजिए that this is totally ZS and this total is ZL. तो यहां पर वापस आ जाए, we have ZL and ZS. So I can write that ES has to be equals to I times, okay, now I is a phasor, remember, but I can write it as such, ZS plus ZL. Can I write it like this? और अगर मैं ये बोलना चाहूं कि what is the load current that flows, तो load current is same, so I can write it ES is equals to IL ZS plus ZL. तो IL हम बोल सकते हैं is nothing but equals to ES upon ZS plus ZL.
आई एल इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल। ये बात समझ आई? यू गेट इट? नाउ व्हाट आई हैव इज दिस, आई एल इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन, अब जेड एस को एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, आर एस प्लस जे एक्स एस, प्लस जेड एल को कैसे लिख सकते हैं, आर एल प्लस जे एक्स एल। अब रियल वाली टर्म एक साथ लिख लीजिए, इमेजिनरी वाले एक साथ। यू टेक आई एल इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन, ये आर एल होना चाहिए, सॉरी ये नोटेशन गलत हो गया था, आर एस प्लस आर एल प्लस जे कॉमन एक्स एस प्लस एक्स एल। इस x में ही ओमेगा छुपा हुआ है, ठीक है, इसीलिए रिएक्टेंस रिप्रेजेंटेशन लिखी है, अदरवाइज जे ओमेगा एल और जे ओमेगा सी याद रहता है, बट हमने वो ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट हटा के एक रिएक्टेंस ले आए, तो इन x में ही ओमेगा छुपा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये चीज समझ आई आपको? यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, इट्स इजी। या फिर यहाँ कैसे पहुंचे, ई एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल, और जेड एस में तो टोटल नेट इम्पीडेंस था बिकॉज ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी इम्पीडेंसेस, तो लिख लिया हमने। तो ये आई एल ये होगा, ये समझ आ गया? डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी योर आई एल? अब if somebody is going to ask you what is going to be the magnitude of IL, अभी देखिए it is not just IL, it is IL plus some phase difference और पता नहीं क्या क्या है इसमें। If somebody is asking us what is the magnitude of IL, so it would be magnitude of ES और magnitude of, ये denominator क्या होगा, under root of RS plus RL का स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो, ठीक। ये ES इंटू, तो बेटा स्क्वायर होके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? अरे एक नंबर है, जैसे मान लो ये है, लेट्स से देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ओके, तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर रूट ऑफ आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का स्क्वायर। Do you understand that term? Okay. Now there is a thing which is to be remembered, that power जो है वो केवल और केवल रेजिस्टेंस खर्च करते हैं, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कभी पावर खर्च नहीं करते, ठीक। क्यों नहीं करते? क्योंकि कैपेसिटेंस तो ओपन सर्किट है, तो आइडियली उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो पावर खर्च होनी नहीं चाहिए आइडियली। और इंडक्टेंस एक वायर है, और वायर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन हम आइडियली कितना मानते हैं, जीरो। तो ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के पावर डिसिपेशन होते ही नहीं, तो आइडियली ये माना जाता है दैट द पावर डिसिपेशन इन ओनली एंड ओनली इन रेजिस्टेंस आर। तो लोड में रेजिस्टेंस कितना है, मतलब नेट आर क्या है, आर एल। तो जो पावर डिसिपेशन होगा, या पावर डिलीवर्ड भी कहते हैं, पी एल, लोड में पावर ट्रांसफर्ड जो होगी, इट विल बी आई स्क्वायर आर से अगर आप निकालें तो लोड करंट का स्क्वायर इंटू आर, दिस विल बी द पावर ट्रांसफर्ड और पावर डिलीवर्ड, ओके। ये पावर डिलीवर्ड होगी। अब क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करनी है इस पावर डिलीवर्ड को। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये जो पावर डिलीवर्ड है मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। तो आई स्क्वायर है, आई एल स्क्वायर है, तो आई एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ देखें, ये आप नोट करते जा रहे हैं ना साथ के साथ। तो पीएल बताएं, पीएल क्या होगा, यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी पीएल। आई स्क्वायर का मतलब हुआ ई एस का स्क्वायर अपॉन, वो जो रूट हट जाएगा नीचे से, इट वुड बी जस्ट आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इनटू आर एल। तो आई स्क्वायर आर एल हो गया, ये जो टर्म है इतना, इट इज योर आई एल स्क्वायर या मॉड्यूलस ऑफ आई एल स्क्वायर। ये पावर डिलीवर्ड,
ओके, नाउ व्हाट वाज द थिंग दैट वाज वेरिंग? इस पूरे में वेरी क्या कर रहा था? लोड. लोड कुड हैव वेरीड. लोड वाज अ वेरिंग लोड. तो आपको ये देखना है कि किस लोड पर ये पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगी. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक dPL by dRL equated to 0. पहली चीज. You can take dPL by dXL and equated to 0. और इन दो कंडीशन से आपको मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा. लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए दैट यू विल गेट अ मैक्सिमा एनीवेज. अगर आप करके देखेंगे आगे या देखेंगे आगे तो वो मैक्सिमा ही मिलेगा आपको. अब ये वैल्यूज पता करनी है. dPL by DRL equals to 0, dPL by DXL equals to 0. क्या कब होगा ऐसा? ठीक, तो ये हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. द थ्योरम इज, अभी तक हम लोग केवल बैकग्राउंड में रिलेटेड चीजें पढ़ते जा रहे थे जो रिक्वायरमेंट थी. थ्योरम इज कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी, यानी ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ XL एंड XS, व्हेन योर XL will be equals to minus of XS. When I'm saying XL equals to minus of XS, तो अब PL में जाकर देखिए ये टर्म कितना बचेगा. What will happen to the reactance terms? 0. रिएक्टेंस टर्म 0 होने पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है. इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इट वुड बी PL इज इक्वल्स टू, या मुझे कहना चाहिए PL मैक्स जो ट्रांसफर होगी इट वुड बी इक्वल्स टू ES स्क्वायर अपॉन RS प्लस RL का स्क्वायर इनटू RL. ठीक, विदाउट एनी रिएक्टेंस टर्म, विदाउट एनी रिएक्टेंस टर्म. ठीक, तो इसकी वजह से मैक्सिमा निकलेगा. यू विल गेट XL इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ XS. और जब यहां से देखेंगे देन यू विल गेट दैट you will also get maximum will be, the maximum will be when RL will be equals to RS. RL 0 तो कर नहीं सकते. ओके, RL has to be a non-zero value, और नॉन जीरो वैल्यू के लिए सबसे मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी when RL will be equals to RS. ठीक है, तो अब इसमें RL equals to RS लगा दिया हमने, तो what it would become? Twice of, देखिए, twice of RS का स्क्वायर, तो इट वुड बी 4 टाइम्स RS स्क्वायर, और ऊपर एक RS है, RS से RS कैंसिल, ES स्क्वायर अपॉन 4 RS. दैट इज द मैक्सिमम पावर दैट वुड बी ट्रांसफर. ओके, और वो होना भी चाहिए था. VRMS में अपॉन रूट 2 आया, IRMS में अपॉन रूट 2 आया, और फिर उसका स्क्वायर लिया, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन RS. तो 3-4 चीजें मैं एक झटके में बता गया आपको. पहले तो ये कि हमने ये देख लिया कि पावर ट्रांसफर जो होती है या पावर डिसिपेट जो होती है वो केवल और केवल किसके अक्रॉस होती है? रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस, ना तो कैपेसिटेंस ना ही इंडक्टेंस के अक्रॉस होती है. और अगर ऐसा है तो इसे मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू लगाकर चेक किया तो हमें पता चला इट वुड हैपन व्हेन XS विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ XS एंड RL इज इक्वल्स टू RS. जब ये दो कंडीशंस होंगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी. अब XL इज इक्वल्स टू माइनस XS करने का मतलब है फेज टर्म का क्या होगा, मतलब इसके साथ J जुड़ता है ना, फेज टर्म का क्या होगा? फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. तो जब फेज डिफरेंस नहीं रहेगा ना कोई इनपुट और आउटपुट के बीच, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है. और अगर आप वैसे वैल्यू में देखेंगे कि वैल्यू में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? जब RL बराबर RS हो जाएगा, यानी इंपीडेंस मैच होगा. जब रियल इंपीडेंस मैच हो जाए और इमेजिनरी इंपीडेंस कैंसिल कर दे एक दूसरे को. XS was the source reactance, XL is the load reactance, but the sign is opposite, it is cancelling each other. No effect of the capacitive or the inductive reactance cancelled, maximum power transferred when RL equals to RS. ये थ्योरम है, कोई प्रूफ नहीं था. ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल लेके आगे बढ़े थे. देयर इज नो सच प्रूफ. लेकिन इस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल के लिए आपको ये चीज समझ आ गई. ठीक है, तो यू कैन टेक एज अ स्लाइट होमवर्क
ये जो इक्वेशन है इसे RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ 2 पेज डेरिवेशन। उसे इक्वल टू 0 करके पता कीजिए कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। ऐसे ही फिर एक्सेल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 करके पता कीजिए कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। यू विल गेट एक्सेल इक्वल्स टू माइनस एक्सेस। इन दिस केस यू विल गेट RL इक्वल्स टू RS, नॉट माइनस। ओके, दैट्स इट। दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर ये कॉन्सेप्ट हटा दें, यानी हम ये वाली चीज अभी रोक के रखें कि जो रियल पार्ट है इम्पीडेंस का वो भी इक्वल है, तब आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। खैर क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, वो एक या दो क्लास बाद सीखेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता चला कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक साइनसॉइडली वेरिंग सर्किट है जिसमें इनपुट इम्पीडेंस है, जिसमें बोथ रियल एज वेल एज इमेजिनरी रिएक्टेंस है, पार्ट है इम्पीडेंस के, यानी रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, और लोड है, लोड में भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तब जब XS यानी सोर्स का रिएक्टेंस कैंसिल हो जाए लोड के रिएक्टेंस XL से, यानी XS की वैल्यू माइनस ऑफ XL के बराबर हो और दूसरी RL की वैल्यू इक्वल्स टू RS हो। ठीक है, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम टुडेज क्लास। गॉट इट? दिस एंड ऑफ कोर्स ये छोटी चीज लगती जरूर है लेकिन इतनी छोटी चीज होती नहीं है। दैट पेपर कोर्स, ये चीज की केवल पावर किसके अक्रॉस डिसिपेट होती है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यस, एंड दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। हो गया? समझ आया या नहीं आया? ऑन अ स्केल ऑफ 10 हाउ मेनी मार्क्स वुड यू गिव टू यू योरसेल्फ समझ आने में? बताएं। 5, 7, 0? हाउ मच? बताएं। ओके, तो इट्स लाइक 90% यू कुड ग्रैब। ओके फाइन, ऑनलाइन में इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट तनु, मानसी, कनिका, अमन, अक्षत, 4 others? लेट मी चेक who are 4 others. It must be Naina is there, Anubha is there, Muskan. Yes means कुछ समझ नहीं आया। 70%, तो 30% तो नहीं आया। 30% नहीं आने का मतलब तो काफी प्रॉब्लमैटिक है। क्या समझ नहीं आया? कैन आई, वुड यू लाइक मी टू रिपीट एनीथिंग यू वुड से? Oh, okay, so let me just quickly say something. देखो, हमारे पास एक सोर्स है और उस सोर्स से रिलेटेड इंपीडेंस है। अब आप इस सोर्स में ऐसे कौन सा डिवाइस लगाएं कि इस डिवाइस में मैक्सिमम पावर आए, ये थ्योरम है। तो हमने कुछ एनालिसिस करके देखी, इसे रिएक्टेंस वगैरह में तोड़ के देखा और पता चला कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जब सोर्स का रिएक्टेंस लोड के रिएक्टेंस का नेगेटिव के बराबर होगा और जब सोर्स का इंपीडेंस लोड के इंपीडेंस के जस्ट बराबर होगा रेजिस्टेंस में। ठीक, तो बहुत डिटेल्ड नहीं है, केवल हमने सरफेस व्यू लिया है, बहुत सब सरफेस टाइप का लेके, ईगल आई व्यू लेके मेन कॉन्सेप्ट उठा के चले। अब कुछ एग्जांपल्स में सीखेंगे अप्लाई कैसे करेंगे ये थ्योरम। जैसे एक एग्जांपल दे दिया जिसमें पूछा गया कि बताइए कि क्या वैल्यू होनी चाहिए एक्सेस की कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, देन यू नो कि ये वैल्यू होनी चाहिए। वी टेक दैट एग्जांपल समटाइम्स लेटर। ओके, जैसे वी आर नॉट गोइंग टू डू इट बट जस्ट टेक इट फॉर not for the sake of doing in this class because I have already taken much of the time. It is, let's say, 5 angle 0. This is 1 ohms. This is J1 ohms. मतलब LS already दे दिया गया. This is minus J2. अब यहाँ से यहाँ तक पूरा सोर्स इम्पीडेंस है। यहाँ पे आपने एक लोड इम्पीडेंस लगाया है। ओके, दिस इज ZL. इट इज वेरिंग, इट इज हैविंग RL प्लस JXL करके। अब आपको बताना है कि किस RL और XL के लिए दिस पर्टिकुलर सर्किट या यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल के आपको ये निकालना है कि सोर्स इंपीडेंस क्या होगा।
आप जो चाहें वो वैल्यू लगा सकते हैं या तरीका लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा के कर सकते हैं या कोई और तरीका भी लगा के कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू ऑब्टेन, यू हैव टू कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू दिस फॉर्म। फिर यहाँ पे आपके पास एक ZL है और ये आपका ES है और ये ZS है, तो इसको यहाँ कन्वर्ट करना है। उसके बाद तो बस सिंपल पता चल जाएगा। एक बार आपको ZS इस फॉर्म में मिल जाए ना, RS प्लस JXS, तब तो कुछ नहीं कहना है, फिर बोलना है कि भाई XL की वैल्यू माइनस XS के बराबर होनी चाहिए और RS की वैल्यू RL के बराबर होनी चाहिए। बट टू गेट दिस इज स्लाइटली ट्रिकी, वी विल टेक इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, व्हाट अबाउट अमन प्रताप सिंह? नहीं, आई एम आस्किंग व्हाट अबाउट यू। ओके, सो परहैप्स यू कैन जस्ट, हाँ मानसी पूछिए। ओके ओके, लेट मी टेल यू, you need omega value when यहाँ पे L में मेंशन थी चीजें। अभी तो इन्होंने बता दिया कि पूरा इफेक्ट ऑफ ओमेगा इज दिस, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इफ दिस इज 5 एंगल 0 और ये हो रही है J1 ohms, तो ओमेगा क्या होगा? ये J ओमेगा समथिंग होता है ना। तो अगर आपको L पता होता तब आप निकाल पाते हो ओमेगा, तो अभी ओमेगा इज हिडन इनसाइड, तो यू डोंट नीड इट एक्चुअली। आपने देखा पूरी एनालिसिस में भी वर नॉट अवेयर ऑफ ओमेगा, हमने XL और XS से काम चला दिया। ओमेगा इज हिडन इनसाइड दिस। तो अभी अगर यहाँ तो कैपेसिटेंस भी नहीं दिया है, इन्होंने कहा है कि कैपेसिटर का जो एक्सेस है या XC है इट इज -J2, सॉरी जो माइनस JXC है इट इज -J2, यानी XC इक्वल्स टू 2 दे दिया है ऑलरेडी। ओके, तो दे हैव गिवन XC इक्वल्स टू 2, अब वहां पे -J मल्टीप्लाई करके -J2 हो गया। दैट्स हाउ वी डू इट। ओके, तो इट्स बिट ट्रिकी। आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे इस RL को रिमूव करके इसके अक्रॉस VOC निकालना, फिर ZTH निकालना शॉर्ट सर्किट करके, तो चीजें पता चल जाएंगी। So in case you have time we can proceed with it, but I would stop the recording first so that it does not become a recording of more than an hour. Already it is